हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लैट पीजी 2021। 2021 में जो क्लैट पीजी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं एंटायर क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो, मैं वो सारे जजमेंट्स आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और वीडियो देखने से पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following judgments relating to equality of opportunity for women seeking permanent commissions in the Indian Army is the excerpt taken from? वैसे तो वो सारे जितने भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। तो वो पैराग्राफ मैंने लिया नहीं है क्योंकि लेकर ज्यादा उसमें कोई फायदा है नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आर फ्रेम्ड विच आउट ऑफ दोस टेक्स्ट विच आर नॉट गिवन इन द पैरा। तो मतलब पैरा बस एक शैम है, बस स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि चाहे वो कंफ्यूज हो जाए, टाइम किल हो जाए और वो बाकी के क्वेश्चन में फोकस ना कर पाए। कुछ ही जैसे मैंने देखा, अगर मैं ओवरऑल एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, और फिर देयर आर आल्सो क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। तो वैसे कुछ कुछ ऐसे रेलिवेंट पैरा है जिसके जो आंसर्स है वो पैरा में ही दिया हुआ है फॉर द क्वेश्चंस गिवन। और अगर मैं केस लॉस की बात करूं, ये काफी ट्रिकी है क्योंकि एक तो पैरा दे दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा कहा गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं द आंसर्स ऑफ द सेम इज नॉट गिवन इन द पैरा। तो इसलिए मैंने पैरा उठाया नहीं है। इस आप देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। Which of the following judgments relating to equality of opportunity for women seeking permanent commissions in the Indian Army is the excerpt taken from? So it is actually option number C, Minister of Defense versus Babita Punia. ये केस आपको पता ही होगा। This judgment has been delivered in the year 2020, and in this judgment the Supreme Court has given permanent commissions for the women officers in the Indian Army. 2. Based on the given excerpt from a judgment, which of the following was not a direction given by the Supreme Court of India? This is option number A. Women officers on short service commission with more than 12 years of experience who do not opt for being considered for the grant of the permanent commission will be entitled to continue service until they complete 22 years of pensionable service. No, this is not true. अगर मान लीजिए कि if a woman actually completes a service for more than 14 years और मोर देन 12 ईयर्स, और या तो फिर क्या कहते हैं, अगर 20 साल की सर्विस भी अगर हो चुकी है तो ऐसे वुमेन ऑफिसर को, सो शी शैल बी गिवन एन ऑप्शन वेदर शी वुड लाइक टू ज्वाइन इन अ परमानेंट कमीशन और नॉट। और अगर वो वुमेन ऑफिसर अगर मना कर देती है, शी एक्चुअली डिनाइज टू टेक द परमानेंट कमीशन, तो ऐसे केसेस में उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाएगा। दिस इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Then question number 3, that women officers would upset the dynamics in a unit is option number C, is a unreasonable ground for denying them permanent commission. So that is what the observation made by the Supreme Court. Question number 4, which of the following judgments is not related to equality of opportunity in matters of public employment as guaranteed by the Constitution of India? This is option number D, Nisha Priya Bhatia versus Union of India, because this case is relating to sexual harassment. Then question number 5, based on the given excerpt, which of the following is correct regarding blanket restriction on women officers in army? This is option number B. An absolute bar on women seeking criteria on command appointments would not comport with the guarantee of equality under Article 14 of the Constitution of India. इस केस में सुप्रीम कोर्ट also allowed the women officers to be appointed in command appointments. तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। Then question number 6, the unrelenting continuation of this immoral practice, the globally shared understanding that it constitutes a form of violence against women and its potential to damage the very fabric of gender equality and dignity that forms the bedrock of our constitution, are all factors that categorically establish prenatal sex determination as a grave offense with serious consequences for the society as a whole. And this observation has been made by the Supreme Court in option number C, Rekha Sengar versus State of Madhya Pradesh. तो ये जो केस था ये बेल मैटर से रिलेटेड केस है, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए रेखा सेनगर जाती है, जो कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जिसे रिजेक्ट किया जाता है। देन शी अगेन वेंट ऑन टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए
उसके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। Then question number 7, in which of the following cases the Supreme Court of India held that provisions of law seeking to divest the right provided under Article 300 of the Constitution of India must be strictly construed? This is option number A. This is N. Padamma versus S. Ramakrishna Reddy. 300A का क्या मतलब होता है? This means nobody shall be deprived of her personal property save by the authority of law. That's what Article 300A said. And in this case law, Supreme Court has strictly said that कि अगर डाइवेस्ट का क्या मतलब होता है? डिनाइल ऑफ द राइट्स। अगर किसी की राइट अगर डिनाई भी की जाती है, सो इट शैल बी स्ट्रिक्टली अंडर द प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 300A. Question number A, in which of the following cases the Supreme Court of India held that the jurisdiction of High Court under section 439 of CRPC is related to grant or denial of bail during pendency of trial? So this has been said by option number D, state representative by the inspector of police versus M. Murugesan. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 439 जो सीआरपीसी का प्रोविजन है, इट ओनली स्पीक्स अबाउट द एप्लीकेशन फॉर बेल, और बस इसी रिलेटेड होना चाहिए। और एक मिनट, इट्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ टाइम। हाँ, बस सेक्शन 439 बस यही प्रोविजन कहता है, लेकिन इस सेक्शन 439 सीआरपीसी के अंडर ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है for grant of bail by exercising the power under section 482 CRPC. Then question number 9, which of the following judgment is not related to property rights of daughter as a co-partner under Hindu law? This is option number D. This is Kalindi Damodar Garde versus Manohar Lakshman Kulkarni. ये जो तीन जो जजमेंट्स ऊपर के दिए हुए हैं, ऐसे अगर आपके सामने अगर ऐसे सवाल आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो केस आपको लगता है कि यू नो अबाउट दैट केस, बस आपको वही केसेस को ही लेकर चलना है। और जो केस आपको अनोखा लगता है, उसके बारे में आपने कभी सुना ना हुआ एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट केस, तो बस उस चीज को एलिमिनेट कर देना है। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही आप इजीली तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की बात करूं, सो दिस जजमेंट स्पीक्स अबाउट द को-पर्सनल राइट्स ऑफ द डॉटर्स इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। और इस केस लॉ में द टू अर्लियर what to say, the judgments of the Supreme Court has been overruled, which is Dhanamma versus Amar and Prakash versus Fulvati. Then 10, which of the following is related to the judgment of Kiran Devi versus the Bihar State Sunni Waqf Board? So this is actually related to presumption of joint Hindu family property. बहुत ही अच्छा केस है, इसे आप पढ़िएगा जरूर। So this judgment has been delivered in the year 2021 and in which Supreme Court has defined that what shall be the definition of joint family property. और ज्वाइंट फैमिली को भी अच्छे से डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है दैट द फैमिली मेंबर इज कॉमन इन फूड, इन वर्शिप एंड इन अदर लाइक इन अदर क्राइटेरियाज व्हिच हैव ऑलरेडी बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उस फैमिली को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाती है। ज्वाइंट फैमिली भी वैसे ही इवॉल्व होता है। 11, as per the given except from a judgment, which of the following is correct in relation to the living status of a father in ensuring co-partnership property rights to a daughter? So this judgment is relating to the Vinita Sharma versus Rakesh Sharma's case. तो इसमें क्या कहा गया था? This option number D, C right in co-partnership to a daughter is by birth. It is not necessary that father co-partner should be living as on September 9, 2005. दलील ये हुई थी कि the daughter shall be denied co-partnership because उनके जो father थे, he was not alive as co-partner as on date September 9, 2005. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरी नहीं है कि फादर अलाइव हो या ना हो, क्योंकि एज सून एज अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी टेक्स बर्थ इन दैट फैमिली, ही बिकम्स अ को-पार्टनर। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट वाज इट हेल्ड दैट अ हिंदू जॉइंट फैमिली इज प्रिज्यूम्ड टू बी जॉइंट इन फूड, वर्शिप एंड एस्टेट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड? सो दिस हैज बीन गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, आदिवेप्पा वर्सेस भीमप्पा। तो ये एक डेफिनेशन थी 2017 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो मैंने आपको अभी बताया कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज प्रिज्यूम्ड टू बी जॉइंट इन फूड, वर्शिप एंड एस्टेट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो इसमें ये डेफिनेशन किया गया था। पहले वाला जो हमने 2019 का जो जजमेंट गया था, इसी जजमेंट के इस डेफिनेशन को दोबारा से वही दोहराया गया था। 13, based on the given except which of the following judgment is related to acceptance of a conditional offer? This is option number B,
Padia Timber Company Private Limited versus Board of Trustees of Visakhapatnam Port Trust Limited. I hope you understand what you mean by conditional offer. जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, और ऐसा भी केस हो सकता है कि दूसरे ने ऑफर किया लेकिन एक्सेप्टर एक्चुअली पुट्स अनदर कंडीशन बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर, सो दैट एक्चुअली अमाउंट्स टू कंडीशनल ऑफर. तो इन दैट केस अगर एक्सेप्टर ने दोबारा से अगर कोई कंडीशन रखा है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर, तो ऑफरर को भी वो ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो जो आपका एक्सेप्टेंस है वो वैलिड माना जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स रिलेट्स टू पोस्टल रूल इन अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस ऑप्शन नंबर डी बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही पूछा गया है. भगवान दास गोवर्धन दास केरिया वर्सेस मेसर्स गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास. तो इस केस में क्या कहा गया था कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग कंक्लूड ऑन टेलीफोन, तो इन दैट केस जहां जो एक्सेप्टर जो है जिस जगह से उसने टेलीफोन बाय टेलीफोन ही एक्सेप्ट द ऑफर, इन दैट प्लेस ओनली द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कंक्लूडेड. देन क्वेश्चन नंबर 15, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट रिलेट्स टू यूथनेशिया. दिस ऑप्शन नंबर ए कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें लिविंग विल का कंसेप्ट कहा गया था, and this judgment has been delivered in the year 2018. 16, which of the following is not correct as per the Supreme Court judgment in Gyan Kaur versus State of Punjab. This option number D, right to life includes right to die. नहीं, ये चीज यहाँ नहीं कहा गया था. This was said in the case of P. Rathinam versus Union of India. Gyan Kaur में कहा गया था right to life doesn't include right to die. 17, which of the following judgments doesn't relate to the constitutionality of right to die. दिस ऑप्शन नंबर बी, दिस इज DS ग्रेवाल वर्सेस बिम्मी जोशी. तो इस केस में ये सब्जेक्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ राइट टू डाई. अदरवाइज ये सारे केस तो आप लोग जानते ही होंगे. 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इवन इफ द प्रेस इज प्रेजेंट, इफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर रिफ्यूज्ड एडमिशन द प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू गो इन ओपन कोर्ट. ये क्वेश्चन मैं मानती हूँ इट्स एक्चुअली the trickiest question in the one of the most trickiest question in the given question paper, क्योंकि ये किसी को भी पॉसिबल नहीं है ये समझ पाना, और ना ही कोई इस तरीके से पढ़ के जाएगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता तो जवाब मैं ऐसे दूंगा. दिस ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाहबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दिस 2010. 19, in which of the following cases the Supreme Court of India held that an application under section 311 of the CRPC could not be rejected on the sole ground that the case had been pending for an inordinate amount of time, in that case for 10 years. So this has been given in option number B, Manju Devi versus State of Rajasthan. तो section 311 जान लेते हैं. It actually gives a power to the court to summon any witness, and he can also examine the persons who are present in the court, like the witnesses who are present in the court. और इस सेक्शन के अंदर कोर्ट ऑल्सो हैज द पावर टू री एग्जामिन द विटनेसेस. तो मतलब एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन दोनों का ही पावर होता है इसमें द कोर्ट को टू, एंड फॉर दैट पर्पस इट कैन सेंड समन्स. तो इस केस में ऐसा हुआ था कि 8 साल का डिले है और उसमें एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि दैट समन शैल बी सेंट टू सम विटनेस, जिसकी टेस्टिमनी बहुत एसेंशियल थी, लेकिन उसे रिजेक्ट किया जाता है इस एप्लीकेशन को. लेटर दी मैटर वेंट ऑन टू सुप्रीम कोर्ट एंड इट सेड दैट कि जितना भी डिले केस में क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर सेक्शन 311 की बात आती है तो ऐसा नहीं कि आप उसे झट से रिजेक्ट कर दो, तो बहुत सारी चीजें देख कर ही आपको फैसला लेना होता है. 20, in which of the following cases did the Supreme Court of India, while dealing with a case in which a successful scientist having national reputation had been taken into police custody without any justifying cause, reprimanded the lackadaisical attitude of the police for the arrest, which made the scientist to suffer ignominy, and awarded compensation of rupees 50 lakhs to compensate the suffering, anxiety and the treatment by which way the quintessence of life and liberty under the constitution withers away. बहुत ही फेमस केस है. इस केस में एक इसरो का साइंटिस्ट रहता है जिसके ऊपर बहुत सारे फॉल्स केसेस, एक कॉन्स्पिरेसी का फॉल्स केस चलाया जाता है, और वो केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके उस चीज का फैसला होता है कि नथिंग हैज बीन फाउंड अगेंस्ट दैट साइंटिस्ट. सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज एस नम्बी नारायणन. केस का नाम भी यही है, एस नम्बी नारायणन वर्सेस सीबी मैथ्यूज. सीबी मैथ्यूज तब के टाइम के केरला स्टेट का मैटर है. कुछ डायरेक्टर जनरल थे पुलिस. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट 50 लाख का कॉम्पनसेशन देती है. Then 21, in which of the following cases did the Supreme Court of India, while
dealing with the case of a social activist who agitated against the issue of exploitation of people belonging to poor and marginalized sections of the society and was falsely roped in criminal cases, arrested and physically assaulted in police custody. Noted if the functionaries of the government become lawbreakers, it is bound to breed contempt for law and would encourage lawlessness, and every man would have the tendency to become law into himself, thereby leading to anarchy. So this judgment has been given by the Supreme Court in option number A, Mahmood Nayyar Azam versus State of Chhattisgarh. ये 2012 का केस है. 22. In which of the following judgments was the constitutionality of section 6A of the Hindu Maritime Guardianship Act 1956 challenge? This is option number C, Geeta Hariharan versus Reserve Bank of India. सेक्शन 6 से जो है वो गार्जियनशिप के बारे में कहती है और जिसमें कहा जाता है कि फादर इज द सोल गार्जियन. लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे ट्विस्ट करते हुए, सेमेंट करते हुए कहती है कि सेक्शन 6 शुड बी रीड डाउन एज बोथ मदर एंड फादर एंड नॉट द ओनली फादर. सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी. 23. Which of the following judgments doesn't relate to the welfare of minor being of paramount consideration? This is option number B. This is Revana Sidappa versus Mallikarjun. क्योंकि ये जो केस है, this is actually relating to the inheritance right of illegitimate minor child. 24. Which of the following judgments relates to the concept of shared parenting? This is option number A. This is Yashita Sahu versus स्टेट ऑफ राजस्थान. आप एक चीज देख सकते हैं, सारे लेटेस्ट केस है, मतलब कि बहुत सारे केसेस तो 2017 से ही पूछे जा रहे हैं. तो आपका अप्रोच ऐसा रहना चाहिए कि जो प्रीवियस के जो लेटेस्ट वाला है उसे तो ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन इसमें से कुछ पुराने केसेस भी होंगे, जैसे फॉर द लास्ट 5 years ऐसे भी केसेस है, जैसे आप 2016 से भी चल सकते हैं. ठीक है ना, 2016 से लेके अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हो चुके हैं उन सबको नजर में रखिए, क्योंकि उसी से ही सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. 25. In which of the following judgments the public trust doctrine was discussed by the Supreme Court of India? ये तो बहुत ही फेमस केस है. This is MC Mehta versus Kamalnath, option number D. 26. Which of the following issues of public interest raised in Deepika Jagataram Sahani versus Union of India? This is option number B. This is reopening and providing services of आंगनवाड़ी सेंटर्स इन इंडिया. क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो होते हैं, आप लोगों को पता होगा, दे आर एक्चुअली मेकिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोवाइडिंग ऑल द बेसिक नेसेसरी फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन एज वेल एज द वीमेन. तो जितने भी, जैसे राशन का हो गया, फ्री राशन की स्कीम हो गई, या तो फिर उससे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एसेंशियल सप्लाईज है वो सर आंगनवाड़ी सेंटर से ही आती है इन रूरल एरियाज. और इस केस में ऐसा हुआ था कि ड्यू टू पैंडेमिक द आंगनवाड़ी सेंटर्स वर क्लोज एंड आफ्टर द रिकवरी ऑफ द कोविड पीरियड कुछ फेस मैनर में आंगनवाड़ी सेंटर्स खुल रहे थे, लेकिन सारे नहीं खुल रहे थे. मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स वर क्लोज. सो अ पिटीशन वाज फाइल्ड दैट क्योंकि वो एक एसेंशियल सप्लाई को मतलब कि लोगों तक पहुंचा रही है, गरीब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें विमेन एंड चिल्ड्रन आर द मोस्टली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर. सो दे शैल बी ओपन. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल उनको ओपन कर दिया जाना चाहिए. देन 27. इफ अ सिटीजन इज no more than a wayfarer or officious intervener without any interest or concern beyond what belongs to any one of the 660 million people of this country, the door of the court will not be azar for him. But if he belongs to an organization which has special interest in the subject matter, if he has some concern deeper than that of a busybody, he cannot be told off at the gates. Although whether the issue raised by him is justiciable may still remain to be considered in context of this statement. Which of the following judgments stated this regarding the rights of workers in India? This option number C. फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981. ये केस जो था एक तरीके से आप लेबर लॉ से ही रिलेटेड केस है. इसमें लोकल स्टैंड आई जो आर्टिकल 32 है उसमें कुछ इश्यूज रेस हुए थे, क्योंकि इसमें पीपल वर नॉट एक्चुअली, ये तो डिस्प्यूट जो था वो फैक्ट्रीज के बीच में डिस्प्यूट था, कुछ सप्लाई एंड डिमांड के बीच में इश्यूज था, और जो वर्कर्स जो थे दे आर एक्चुअली वर्किंग इन दैट फैक्ट्री. सो मेन इशू ये था कि क्योंकि सप्लाई और डिमांड कुछ टेंडर से रिलेटेड कोई केस था, तो क्योंकि उसके कारण फैक्ट्री को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके कारण वर्कर्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग, दे आर नॉट गेटिंग पेड ऑन टाइम. तो इसलिए आर्टिकल 32 में से चैलेंज किया गया, और तब ये बात उठी कि हाउ कैन दे फाइल द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, व्हाट इज द लोकस स्टैंड है, क्योंकि ये केस तो उनसे रिलेटेड कुछ है ही नहीं. तो उसने कहा कि नहीं, वो फिर भी किया जा सकता है.
So, no, sorry, it was not related to PIL, it was only related to Article 32. 28. Which of the following public interest litigations is related to proper maintenance of cultural heritage of India as also the ecology in the surrounding areas of Taj Mahal? So, this is the 2008 case of MC Mehta versus Union of India. देखिए MC Mehta versus Union of India ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे and those have been landmark. और ऐसे केसेस को याद रखने के लिए आपको ईयर वाइज याद रखना पड़ेगा कि किस ईयर में कौन सा जजमेंट आया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट जजमेंट. तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा. 29. Which of the following judgments held that heart ailment is not a disability covered under the ambit of rights of persons with disabilities act 2016? This is option number C. नवल किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021. इसमें कहा गया था कि हार्ट एलिमेंट कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती है अंडर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एक्ट. Then 30. Based on the given excerpt, which of the following judgment deals with the rights of disabled persons? This is option number A. जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस केस है जिसमें ये केस, इस जजमेंट को आप एक बार देख जरूर लीजिएगा. और उसके साथ साथ ये तो अलग जो 3 जो केसेस दिए गए हैं नीचे जो दिया गया है, सो दिस केसेस आर एक्चुअली रिलेटेड टू फैमिली लॉ. 31. Which of the following is not correct as per the सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2020? ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट रहा है. तो इस केस में ऐसा था कि विकास कुमार वाज सफरिंग फ्रॉम अ राइटिंग स्क्राइब प्रॉब्लम व्हिच वाज नॉट डिफाइंड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट. लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट. और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी. पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू बियर द कॉस्ट ऑफ द अकोमोडेशन. दिस इज नॉट ट्रू. इसमें कहा गया विच इज नॉट ट्रू. उसके बाद कहते हैं अगले केस में विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वाज रेज्ड इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम सेल्वा कुमार 2017 केस. इज ऑप्शन नंबर बी. दिस इज स्पेशल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि disabled persons are actually another category apart from the other categories given. मतलब मान लीजिए जैसे SC ST OBC जैसे कुछ रिजर्व कैटेगरीज है, दे कम अंडर द वर्टिकल कैटेगरी. लेकिन जो PWD के जितने भी लोग हैं दे कम अंडर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. सो इन दैट केस दोनों की कैटेगरी अलग है, इनका कैटेगरी बिल्कुल ही अलग है. दोस अदर रिजर्व कैटेगरीज. उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन है ये मैं आज तो नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ आपको कल जरूर कराऊंगी. तो इसी के साथ साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ. आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. सो टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.